Hello everyone, am I audible? Hello everyone, I hope I'm audible to all. A very good morning, and I'm Gamini Singla, and I have secured rank 3 in the civil services examination this year, and so glad, and it's a pleasure to be interacting with you all. And we have around 30 minutes, so I just want hello everyone. So many students are just sending their good wishes. Hi Suresh, hi Rajendra, hi Rohit, hello everyone, hi Aniket. So hi everyone. So let's now just start with the session once, and I'll be happy to answer your Q&A sessions because you would have heard me speaking my strategy on a number of platforms. But let it be the questions from your side that you want me to address, and as and when I feel that the questions are many people are asking the same questions, so I'll tend to answer them. So first of all, let's start with the fact that how to start the UPSC preparation, because I think that we have a lot of college students also, and I've been getting a lot of messages from the students from school and college who are unable to decide that how to know whether to prepare for UPSC or not. So the first thing is that you should be very thorough with how the life of a civil servant looks like. So do not just fall into the glamorous picture of whatever you are seeing on the social media. The only thing that you can decide that can make you decide that whether it's a good option is should be your interest. What kind of life do you want going ahead, and to know about all the positives and all the challenges that this kind of journey will bring. So know about the challenges of a civil servant, because that is something you're aspiring to be. And secondly, about the challenges of this journey, because this journey is very long. It is tiring also. It is sometimes mentally also, it starts taking a toll over your health. So be prepared to know about these things. But otherwise, this journey is very beautiful. And let me tell you, when you come out and when you are preparing, you become a very different person, and mentally and intellectually you just start feeling knowledgeable, and it adds to a lot of things in your personality also. So it's a good journey to start, but make your mind and then stand firm to it. So first, how do we start with this preparation? So many warm wishes coming. Thank you Divya, thank you Lucky, thank you Harish Chandra, thank you Varsha. And तो मैं अपनी लैंग्वेज को बाइलिंगुअल रखती हूँ, बिकॉज हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चे हैं हमारे पास. तो हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं इस प्रेपरेशन को? मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की थी NCERTs के थ्रू, क्योंकि NCERTs एक ऐसा बेस है जो अगर आप एक बार उनको पढ़ लेते हैं तो आपका बेस क्लियर हो जाता है और आपको कॉन्सेप्ट समझने में भी बहुत ईजी रहता है. तो समटाइम्स इट इज़ जस्ट अ मिथ दैट द क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग फ्रॉम द NCERT नाउअडेज, बिकॉज आई हैव सीन क्वेश्चंस थोड़े से ट्वीक करके ही उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हमको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी. तो इसलिए हमको NCERTs को स्किप नहीं करना है. एंड स्पेसिफिकली जैसे कि हमारी ज्योग्राफी की NCERT है, तो आप 6th से ही उसको वी कैन स्टार्ट, एंड 6th to 12th की NCERTs कीजिए. एंड वंस यू हैव गॉन थ्रू देम, तो रिविजन के टाइम पे यू कैन स्टिक टू 10th to 12th की NCERTs. इकोनॉमिक की NCERTs बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. देन पॉलिटी की NCERTs बिकम इम्पॉर्टेंट. हिस्ट्री के लिए तो आई थिंक NCERTs आर द बेस्ट, एंड देर इज़ नो अदर सोर्स दैट आई कैन मैंशन फॉर एंशियंट एंड द मिडिवल हिस्ट्री एट लीस्ट. सो एंड एंशियंट में सिर्फ 11th की RS शर्मा ही मत कीजिए. 6th स्टैंडर्ड में एक R पास करके जो बुक है उसके लिए भी यू शुड गो अहेड एंड डू दी NCERTs. Now economics के लिए I think somebody is asking the question. For that NCERTs are very relevant also, and they'll help you make your concept stronger. So I refer to the NCERTs from 6th to 10th, and for revision +1 +2 की NCERTs along with the current affairs. So NCERTs are just the beginning, and then start with the basic books once you're done with the NCERTs, and take your time. Do not rush with these books in the first reading or in the second reading, because the initial readings are going to make your base strong, and then just keep revising these books along with the current affairs that are coming. For the current affairs, I think newspapers are going to be
your key, and I'm noting down the questions. Don't worry if they're not being answered. I'll try a lot. I'll try to answer all the questions, and if the time is less, we can plan another session also. तो एन के बाद बेसिक बुक्स जैसे हमारे पास लक्ष्मीकांत की बुक है और स्पेक्ट्रम की बुक है, ऐसे आपको बेसिक बुक्स की लिस्ट आपको पता रहेगी, तो उसको आप एक बार स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे करके उसको समझिए और फिर उसको रिवाइज़ करते रहिए. करंट अफेयर्स के लिए जैसे कि काफ़ी एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर इज़ द की. और जो बच्चे सेकेंड, थर्ड या फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए माई हम्बल एडवाइस इज़ कि न्यूज़पेपर्स को मेक योर बेस्ट फ्रेंड. सो व्हेन आई वाज इन द कॉलेज एंड जब अगर बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं भी मिल रहा है, तो न्यूज़पेपर्स आई यूज़ टू स्टडी एंड रीड एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज इवेंचुअली आपका वो टाइम कम होने लग जाएगा जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डाल लेंगे. सो न्यूज़पेपर को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए. अभी आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो यू कैन जस्ट गूगल द टर्म्स. विच न्यूज़पेपर इज़ द क्वेश्चन दैट इज़ बीइंग आस्क्ड. वो मैटर नहीं करता है. मैं हिंदू पढ़ती थी, बट अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस पसंद है या द मिंट पसंद है या कोई भी न्यूज़पेपर पसंद है, तो आप एक न्यूज़पेपर को एंड टू एंड पढ़िए और फिर बाद में जाके इंटरव्यू के दौरान हम थोड़े और एक दो और न्यूज़पेपर्स को भी रेफ़र कर लेते हैं. ठीक है, तो ये होगा करंट अफेयर्स के लिए. और साथ में आप जो भी मैगज़ीन, कोई भी एक सोर्स उठा लीजिए, कोई भी एक कोचिंग का आप उठा सकते हैं या वेबसाइट से आप देख सकते हैं. मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस कर लिया करती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि आज अगर न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा है एंड देन वी हैव द डेली न्यूज़ एनालिसिस विद द सेम ऑन द वेबसाइट, तो वो एक तालमेल बिठा देता है दोनों चीज़ों में. देन आई यूज़ टू रिवाइज फ्रॉम द डेली न्यूज़ एनालिसिस. तो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू मैनेज माई करंट अफेयर्स एंड द बेसिक प्रेपरेशन. So not going into the detail because there are so many questions that I would like to answer. The first thing is, what subject to start first? Ma'am Rakesh has been asking. You can start with the subject that makes you feel comfortable. Because धीरे धीरे जाके बहुत सारे subjects cover करने हैं, तो आप चाहे जो भी subject start कर सकते हैं. उसका कोई भी मुश्किल नहीं है कि आपको ये subject पहले start करना है या दूसरा subject पहले start करना है. और आप आगे बढ़ते हो, अगर मैं क्वेश्चंस आई एम एबल टू मेक आउट, एंड सो मेनी ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट द इमोशनल स्ट्रेंथ दैट दिस पेपर रिक्वायर्स. सो दैट इज़ सो ट्रू. मेंटली यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सबसे पहले तो व्हेन यू मेक योर माइंड, सारे आप पहलू को जान के अपना माइंड बनाएं, एंड उसके बाद आप उस पर डिटरमाइंड रहें और अपने मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि ये 2-3 साल की या उससे ज़्यादा की भी जो जर्नी है, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा. आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं रिजल्ट्स. दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ द यूपीएससी सीएससी, दैट यू हैव टू सस्टेन योर सेल्फ. और पेशेंस बरकरार रखनी है, और वो कोई आपको मदद नहीं कर सकता. आपको अपने अंदर से ही ये चीज़ को लेकर आना है कि ये जर्नी अगर टाइम लेगी तो हमको इसको सस्टेन करना है. एंड सेकेंड थिंग इज़ द ऑप्टिमिज्म. So sometimes we get demotivated whenever we see someone clearing in the 5th attempt or not being able to make it, या मार्केट में कोई नया मटेरियल आ गया और हमने नहीं पढ़ा है. तो लेट मी टेल यू, स्टिक टू दी बेसिक सोर्सेज. एक बार ही आपने सब टॉपर्स की बातें सुन के अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली है, बुक लिस्ट बना ली है, उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं कि उस पर आप बस स्टिक कीजिए. उसके बाद आप हर मटेरियल या हर स्ट्रैटेजी के ऊपर ना जाएं. एक बार ही अपनी बना लीजिए और फिर अपने जैसे मॉक टेस्ट या आप रिविजन्स कर रहे हैं, तो आपको जो भी लैकिंग लगता है उसके हिसाब से यू ऐड टू दी प्रिपरेशन, रादर देन रनिंग आफ्टर एवरी थिंग दैट कम्स इन द मार्केट. तो और इमोशनली हम और बात कर रहे थे, क्योंकि आई थिंक ये वैसा टॉपिक है जो जिसको डील नहीं किया जाता है. एवरीबडी टॉक्स अबाउट द स्ट्रैटेजी, बट इमोशनल and the mental preparation is not dealt in the way that it should be. So I'll be speaking a little more on that. और इस एग्ज़ामिनेशन के दौरान आपको एंग्जाइटी, फियर, अनसर्टिनिटी, अपने दोस्तों से कंपैरिजन और इन सब चीज़ों का ख्याल कि हम जो चीज़ें सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्या वो वर्थ इट है नहीं. तो जब अगर आप ये चीज़ें फेस कर रहे हैं तो इट इज़ नथिंग न्यू. ये चीज़ें मैंने भी फेस की हैं, एंड आई एम श्योर मेरे साथ के जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उन सब ने ये चीज़ें फेस की हैं. तो आपको बस इतना ही डिफरेंस है इन चीज़ों में हमारा और बाकियों का, कि मैंने इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. अगर ये बैकग्राउंड में चल भी रही हैं तो मैंने अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा कि अगर मैंने सोचा है कि मुझे इतना कवर करना है, इतना पढ़ाई करना है, तो मुझे वो करना ही करना है, इर्रिस्पेक्टिव कि मेरा मन क्या कह रहा है. तो आप एक कैलेंडर रखिए अपना, जिसमें यू कैन जस्ट कीप टिकिंग कि आज का दिन कैसा गया, कितनी देर मैंने पढ़ाई कर ली है, और वही आपको आगे जाके मोटिवेशन का आपके जो है रास्ता खोल देगा. ठीक है,
तो जैसे जैसे आपका एक एक दिन का टारगेट पूरा होता रहेगा, वैसे वैसे आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ती रहेगी और आपको ये भी लगने लगेगा कि आप कुछ डाल रहे हैं अपना एफर्ट, और उसका कुछ पता भी लग रहा है. अब द क्वेश्चन इज प्लीज़ शेयर योर बुक लिस्ट एंड शेयर दी सोशियोलॉजी ऑप्शनल बुक लिस्ट. तो बुक लिस्ट जो है मैंने पहले NCERTs आपको बता दी हैं, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट मिडिवल जो है मेजरली मैंने NCERT से कवर किया था. आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने 11th की फाइन आर्ट्स की NCERT, और जो हमारी नितिन सिंघानिया सर की बुक है उसमें भी सिर्फ रेलिवेंट टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं. तो अब हम आते हैं इस बात पे, जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक कौन सी पढ़नी चाहिए बुक और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें छोड़ें क्या चीज़ें रखें. तो उसके लिए आई थिंक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ that you know the demand of the preparation. And how do you know the demand of the preparation is when you have seen previous year questions. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जब बैठ के अपने खुद के पैटर्न्स आप उसमें से निकालेंगे, तब आपको समझ आने लगेगा कि क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए. क्योंकि मैंने बहुत एक्सटेंसिवली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न्स को स्टडी किया और जाना कि UPSC किस तरह की नॉलेज हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. अगर आप सोचें कि कोई आपको बता दे कि मैं बता दूँ वो पैटर्न्स, तो वो एक शॉर्टकट हो जाएगा और वो उतना सहाय नहीं है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सो हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब पैटर्न्स आप खुद डिराइव करते हैं तो आपको समझ ज़्यादा आता है, एंड देन यू आर एबल टू बेटर फोकस ऑन द न्यूज़ पेपर्स ऑल्सो. Then we have some questions about the note making and how to choose the optional. So let's quickly discuss these two things. How to choose the optional? I think 3-4 factors should decide. At least in my case they decided. One was कि मेरा interest किस optional में है. कई बार आप सिर्फ एक optional इसलिए कर लेते हैं कि इस साल का टॉपर उधर से निकला है, पिछले साल का टॉपर उधर से निकला है. तो कोई पैटर्न मत ड्रॉ कीजिए. UPSC में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि इस ऑप्शनल को ज़्यादा मार्क्स देते हैं या इस मीडियम को ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं. कई हिंदी मीडियम के बच्चों को लगता है कि शायद हमारा हिंदी मीडियम है तो हम नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट है आपकी मेहनत और जिस तरह से आप उन किताबों को ज़्यादा पढ़ रहे हैं. तो एक हो गया ऑप्शनल के लिए आपका इंटरेस्ट. दूसरी चीज़ हो गई कि मटेरियल अवेलेबिलिटी. तो क्योंकि ऑप्शनल को आपको बहुत डेप्थ में करना होता है, तो मेरा मकसद था कि उसका मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, तो इसलिए मैंने सोशियोलॉजी चूज़ किया. तो समबडी इज आस्किंग सोशियोलॉजी और PSIR में से विच इज़ बेटर ऑप्शनल. तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पैरामीटर्स क्या होने चाहिए. बेटर आपके लिए क्या है वो आप खुद डिसाइड कीजिए, राइट. और तो सेकंड हो गया उसकी मटेरियल अवेलेबिलिटी. थर्ड मेरे लिए जो फैक्टर था वो ये भी था कि GS के साथ काफ़ी ओवरलैप करता है सोशियोलॉजी का सिलेबस, एंड इट विल हेल्प मी बेटर to represent my opinions in mains answer writing also. And the fourth thing which is mattered for me was कि syllabus is very short and comprehensive and I can revise it. और बुक लिस्ट में शायद कुछ बच्चे जोग्राफी और इकोनॉमिक्स की जानना चाह रहे हैं. तो जोग्राफी के लिए मैंने +1 +2 की NCERTs और 10th की NCERTs को बार बार रिवाइज़ किया, और उसके बाद GC लॉन्ग बुक को काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ किया. और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको बताया कि +1 +2 की NCERTs, और सेकेंडली उसके साथ साथ करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए. और इकोनॉमिक सर्वे को भी मैंने रेफ़र किया. उनकी जो हर चैप्टर की समरी आती है, मैंने बुक ले ली थी जो इकोनॉमिक सर्वे की हमारे बुक्स आती हैं दोनों, जब वो पब्लिश होकर आते हैं उसमें से जो समरी रही मैंने उसको पढ़ा. एंड थर्ड थिंग आई डिड वॉज बजट ऑल्सो. एंड अमांक इज़ आस्किंग दैट इज़ कोचिंग इम्पॉर्टेंट. इट्स अ मिथ दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो टू दिल्ली इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर UPSC. मैंने अपनी सारी पढ़ाई अपने 2 साल 2020 से 22 घर रह के अपनी पढ़ाई को पूरा किया है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोचिंग ज़रूरी है. अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत लग रही है या समझ नहीं आ रहा है किताबों से, तो आप जा सकते हैं, कहीं से पूछ सकते हैं. तो अपना बेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में कर सकते हैं, बट उसके बाद सेल्फ स्टडी ही आपकी हेल्पफुल रहेगी. क्योंकि आप जितना टाइम बुक्स के साथ, अपने खुद के साथ, अपने नोट्स के साथ बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस एग्ज़ाम में कंफर्टेबल होंगे. तो स्टार्टिंग के लिए बेस बिल्ड कर सकती है कोचिंग, बट आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी. तो अभी एक एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए. तो टाइम आप सबका डिफरेंट रहेगा. कोई आई थिंक कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो प्रिपरेशन अपने कॉलेज से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ जॉब के साथ कर रहे हैं. तो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज़ कि आपका जो भी फ्री टाइम है आप उसका बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल यूज़ लें.
उस टाइम में आप ये ना सोचें दिस वी हैव अ लॉट ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट कि हमारे फ्रेंड्स अगर पार्टी पे जा रहे हैं तो हम अपना फ्री टाइम कई बार उन चीज़ों में सोच कर ही हम व्यतीत कर देते हैं, एंड विच इज़ नॉट राइट। जो फ्री टाइम आपके पास है जस्ट प्लान इट, डू नॉट क्रिब कि आपके पास ज़्यादा घंटे नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आपके पास जितने भी घंटे हों उनको आप इस तरह प्लान कीजिए कि आपका करंट अफेयर्स भी रोज़ की रोज़ कवर हो, न्यूज़पेपर, और मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस करती थी। जो सब्जेक्ट आप करना चाह रहे हैं उसको आप पढ़ें, और मैं एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करती थी और उसको सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ कंबाइन कर लेती थी इन दी इनिशियल डेज, क्योंकि ऑप्शनल पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है। And Hari Varshne is asking that is it easy to crack UPSC CS in the first year? Yes, it is not like that you need so many attempts to clear UPSC. I cleared it in my second attempt. मेरे साथ कुछ बच्चों ने फर्स्ट में किया है, तो ये एक मिथ है कि आप बहुत सारे अटैम्प्ट्स के बाद ही क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट को आप ऐसे दें कि वो आपका बेस्ट अटैम्प्ट है, तो डेफिनेटली आई थिंक फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसको क्लियर करने के लिए आपको रूल्स ऑफ द गेम पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि रिविज़न। आकाश जगताप पूछ रहे हैं कि रिविज़न मेथड वीकली है या मंथली, कि आप खुद के हिसाब से देखें। अगर आपको चीज़ें वीक के बाद भूलनी शुरू होती हैं तो आप वीक के बाद कीजिए। अगर आपकी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप मंथली रिवीजन कीजिए। मैं बेसिकली बाय वीकली कर लेती, एज इन कि 2 वीक्स में एक बार रिवाइज़ करने की कोशिश कर लेती थी जो भी मैंने किया है। और इस एग्ज़ाम में रिवीजन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ कई बार हमें लगता है कि हम नई चीज़ें करते रहें और तो हमारी जो बेस है वो बन जाएगा और ज़्यादा नॉलेज होगी। बट आई थिंक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप उन जो बेसिक किताबें हैं, जो करंट अफेयर्स जहाँ से आपने किए हैं, उनको बार बार पढ़ें। हर बार जब आप एक किताब पढ़ेंगे देन यू विल रियलाइज़ दैट यू हैव समथिंग न्यू टू लुक अप टू। कुछ ना कुछ नया आपको समझ आएगा, क्योंकि आप मॉक पेपर्स भी सॉल्व कर रहे होंगे, और जब आप मॉक पेपर सॉल्व करेंगे आपको पता लगेगा कि रिवीजन में कहाँ कमी है। आप फिर जाएं उस बुक के ऊपर, उसको उस तरह से रिवाइज़ करें, उस क्वेश्चन को जिसको आपने मिस किया था वो फिर से देखें। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरह से आप रिवीजन को प्लान कर सकते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं नोट मेकिंग पे, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स पूछना चाह रहे हैं। तो नोट मेकिंग के लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स में से कोई नोट्स नहीं बनाए थे, बिकॉज मुझे लगता था कि अगर बुक्स में कुछ लिखा है तो जस्ट सिंपली बाय मार्किंग विद अ डिफरेंट पेन आई कैन जस्ट द पर्पस विल बी सॉल्व। बट मैंने करंट अफेयर्स के लिए मेंस पर्सपेक्टिव से अपने नोट्स रेडी किए थे, और वो भी आंसर राइटिंग या नोट मेकिंग मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू नहीं कर दी थी 2018 से। पहले मैंने न्यूज़पेपर को समझने की ज़्यादा कोशिश की, उस पर टाइम ज़्यादा व्यतीत किया। तो जो बच्चे सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं कॉलेज के और अभी उनको 2 साल बाद एग्ज़ाम देना है, मेरी उनके लिए यही एडवाइस रहेगी कि अभी से नोट मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दें, अभी चीज़ों को समझने में ध्यान दें। फिर उसके बाद जैसे 7, 8, 9 या 9-10 महीने पहले मेंस से जब आपको न्यूज़पेपर समझ आने लग गया है, आपको मेंस की डिमांड क्लियर हो गई है, तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और मैं अपने नोट्स इस तरह से बनाती थी कि 1, 2, 3, 4 के लिए मैंने अलग अलग कॉपीज़ लगा रखी थी, और ऑप्शनल के लिए तो सिलेबस को मैं अपने हाथ में रखती थी। तो मुझे लगता था कि कोई भी ऐसा आर्टिकल आया है जो सिलेबस के साथ कर सकता है, उसको कोहेरेंट है, तो मैं उसको उस पर्टिकुलर जगह पे जाके लिख लेती थी, और उसको इस तरह लिखती थी कि एक आंसर फॉर्मेट में लिखा जाए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो अगर बॉडी में कोई भी डाइवर्सिफाइड एस्पेक्ट्स हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के, जैसे कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे सोशल है, इन्वायरमेंटल है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, तो उसको मैंने बॉडी में नोट कर लिया। बहुत कम, छोटा छोटा, पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से लिखें कि आपको याद रहे कि अच्छा बस ये वाला एस्पेक्ट आप कवर कर सकें अपने आंसर में। फिर उसके बाद मैं अगर सजेशंस दिए होते थे कोई भी आर्टिकल में, तो मैं उनको अपने सजेशंस की तरह लिख लेती थी अपने नोट्स में। तो वो एक तरह से मेरा एक ड्राफ्ट आंसर भी रेडी हो जाता था उस टॉपिक पे, जो मैं मेन से पहले रिवाइज़ कर लेती थी। एंड देन आई यूज़ टू स्टार्ट विद द आंसर। एंड देन आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी है वो भी आप पहले मत कूदिए आंसर राइटिंग के लिए। और मैं आपके क्वेश्चन सब पढ़ रही हूँ, आप ऐसे पे क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, तो जितना भी टाइम होगा वी विल डेफिनेटली आंसर दैट ऑल्सो। बट पहले हम आंसर राइटिंग की बात कर लें कि कब स्टार्ट करी जानी चाहिए। आंसर राइटिंग अगर आप स्टार्टिंग में ही करनी शुरू कर देंगे तो आप ना अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे और ना चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि जब एक बारी आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएं, जब आपने एक बारी सारी बेसिक किताबें पढ़ ली हैं या फिर एटलीस्ट एक सब्जेक्ट की किताब पढ़ ली है, उसके बाद आप एक आंसर लिखना स्टार्ट करें।
जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कॉलेज के दौरान पढ़ रहे हैं तो पहले पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, रिवीजन पे ध्यान दें, और आंसर्स आप लिख सकते हैं एक साल पहले से। आप धीरे धीरे करके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डाल सकते हैं। एक या दो आंसर्स एक दिन में लिखिए, फिर उसके बाद आप फुल मॉक टेस्ट पे धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हैं। बट आंसर राइटिंग इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसका टाइमिंग ऐसा है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, चीज़ों को समझें। बट बहुत इम्पॉर्टेंट है आंसर राइटिंग, बिकॉज़ वही आपके लिए एक्चुअल मार्क्स लेकर आएगी। और एक एक दो दो क्वेश्चंस आप रोज़ करें और उसके बाद आप फुल मॉक टेस्ट में शिफ्ट हो जाएं। तो और जो मैं अभी एक सेकेंड में पढ़ रही हूँ आपके जो कमेंट्स हैं, आप फटाफट अपने जो 2-3 आपके क्वेश्चंस हैं आप उनको डाल दीजिए, ताकि मैं उनको एक बारी कर सकूँ रिप्लाई उन पे भी। ऐसे राइटिंग पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिवाइज NCERT बुक्स अगैन एंड अगैन? येस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये गलती अपने फर्स्ट एग्ज़ाम में की, तो मेरा वो अटैम्प्ट नहीं क्लियर हुआ क्योंकि मैंने रिवाइज़ नहीं किया। मुझे लगा कि NCERTs को रिवाइज़ करने की क्या ज़रूरत है, बट उनमें से कई बार टर्मिनोलॉजीज़ को ज़रूरत पड़ती है रिवाइज़ करने की, स्पेशली हिस्ट्री में, तो आप उनको कीजिए प्लीज़, उसको भी कीजिए। ऐसे और एथिक्स का हम शॉर्ट में कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि ऐसे को कैसे लिखना चाहिए। तो ऐसे में जो है उसकी स्ट्रैटेजी बहुत आपका स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में, क्योंकि आप अगर ऐसे में कुछ स्टार्ट कर दें और फिर आपके दिमाग में आए ही ना कि आगे क्या लिखना है, तो एक फ़्लो नहीं बन पाता है। तो एटलीस्ट 10 to 15 minutes you should take to structure your essay. By structuring I mean to know कि एक पैराग्राफ में which dimension will be discussed and the next पैराग्राफ में which dimension will be discussed. इस तरह से आप उसको diversified dimensions के थ्रू करें। social dimension उस particular essay topic की, economical, environmental, ethical dimension, historical dimension, तो ये सब dimensions हो गई। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं assertion, यानी कि आप अपना एक पॉइंट बता रहे हैं कि इकोनॉमिक डायमेंशन से ये इस ऐसे के टॉपिक को आप लिंक कीजिए। उसके बाद एक एग्जाम्पल ज़रूर दीजिए, एग्जाम्पल, केस स्टडी या एक करंट अफेयर से लिंक कीजिए, ताकि आपकी नॉलेज का डेप्थ जो है वो शोकेस हो सके। और कोटेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे में, स्टार्टिंग और एंड में और बीच में भी, बट ओवर डू मत कीजिए, उनको बस स्प्रिंकल कीजिए, ताकि वो आपके ऐसे को ऐसा ना बनाए कि आप एक थिंकर के पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं। लिखना आपने अपनी पर्सनालिटी को दर्शाने के लिए है, बट आप थिंकर की हेल्प ले सकते हैं कोट करके, राइट। अब अगर हम आगे जाएं तो सो मेनी पीपल आर आस्किंग अबाउट कि इन्वायरमेंट के लिए क्या किया जाए। इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा, सचिन राजा हैज़ आस्क्ड कि हाउ टू डील विद इन्वायरमेंट, एंड मेनी अदर पीपल ऑल्सो आस्क्ड। येस, गुड मॉर्निंग अबीद। तो इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS की जो किताब है उसको किया, और इन्वायरमेंट के लिए मैंने बहुत सारा करंट अफेयर्स से हेल्प ली, और बायोलॉजी की जो NCERTs के लास्ट 4-5 चैप्टर्स रहते हैं उसको भी मैंने पढ़ा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे काम आई वो थे मॉक पेपर्स देने, और करंट अफेयर्स में जैसे कोई भी रेलिवेंट चीज़ मुझे लगती है उसको बहुत ज़्यादा गूगल करना, क्योंकि इन्वायरमेंट में आजकल बहुत ज़्यादा डेप्थ IDs फेक 999 जवाब दीजिए। आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं उसको जवाब देती हूँ। आप 3-4 बार आई थिंक क्वेश्चन लिख चुके हैं, एक बार आप दोबारा लिखिए। तो इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की हमने बात करी, करंट अफेयर्स को गूगल करने की हमने बात की, और मॉक टेस्ट पेपर्स में से आप इन्वायरमेंट के काफ़ी दीजिए। मैंने एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट के मॉक्स दिए थे, और उनसे भी मेरे को जो कंटेंट मिला मैंने उसे रिवाइज़ किया। और इन्वायरमेंट के साथ साथ जो है हमारे स्पीशीज़, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन्वायरमेंट एक बहुत वास्ट कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत डायमेंशंस हैं, और वो NCERTs जो मैंने बताया 4 चैप्टर्स, और उससे पहले भी कुछ चैप्टर्स हैं विच आर रेलिवेंट फॉर द environmental portion that is being asked nowadays, apart from the Shankar IAS book and the current affairs. I hope कि this question is answered. And the other question that we have is कि ग्रेजुएशन के टाइम से या 12th के बाद से कैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। तो मुझे लगता है अगर आप 12th के बाद से ही स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन करनी, तो पहले तो आप उसको सोचिए कि आप करना क्यों चाह रहे हैं और करना चाहते भी हैं या नहीं। अगर आपने अपना दिमाग एक तरह से आपने निश्चय कर लिया है कि हमें करना ही करना है, तो आप NCERT से और अपने करंट अफेयर्स से स्टार्ट कीजिए। करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डालिए। तो मैंने अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही न्यूज़पेपर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की कोशिश कर ली थी, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए, और फिर वो धीरे धीरे न्यूज़पेपर की हैबिट जो है वो बन जाएगी। तो महिमा ठाकुर इज सेइंग कि न्यूज़पेपर की हैबिट नहीं पड़ रही, वो धीरे धीरे पड़ेगी आपको।
आप रोज़ उस पर पढ़िए, उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, बिकॉज़ अगर आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो वो बोरिंग बन जाएगा। जो भी सब्जेक्ट है, चाहे न्यूज़पेपर है, यू जस्ट नीड टू रीड इट विद द इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे आएगा? जब आप हर चीज़ को गूगल करेंगे, आप हर चीज़ की देखना चाहेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुई ये चीज़। अगर कोई मूवमेंट पढ़ रहे हैं, फार्मर्स मूवमेंट, तो जस्ट गूगल इट, जस्ट नो इट्स बैकग्राउंड। इस तरह से आप एक इंटरेस्ट जनरेट कीजिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ने में भी आपको आसानी रहेगी। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इज़ अ क्वेश्चन विच आई एम सीइंग अ लॉट। तो मोटिवेशन जो है आपके अंदर से आएगी, कोई आपको और नहीं बता सकता हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। आप अपने रीज़न पे जाएं कि वाई डिड यू स्टार्ट इट एट द फर्स्ट प्लेस, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट, तो आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मुझे लगता था कि जो और ऑप्शंस हैं वो मैं उनमें जाना नहीं चाह रही हूँ। तो जैसे कि कॉर्पोरेट जॉब आई लेफ्ट इट, क्योंकि मेरा मन नहीं था उधर करने का। मेरे लिए यही एक सेटिस्फाइंग करियर मुझे लग रहा था। तो एक मोटिवेशन बनी मेरे लिए कि अगर ये नहीं तो कुछ भी और नहीं है जिसमें मैं जाना चाहूँगी, या फिर अगर कुछ और है तो वो सेकेंड ऑप्शन है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। तो एक वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकेंडली आपका डिसिप्लिन आपको मोटिवेटेड रखता है। आप जब जो एक एक दिन आप अपने डिसिप्लिन तरीके से जो जो आपने देखा है या चाह रहे हैं उस तरीके से जिस तरह से प्लान किया है, जो एक एक दिन जाएगा वो आपको मोटिवेटेड भी रखेगा। तो डिसिप्लिन को भी साथ लेके चलें अगर मोटिवेशन कभी कभी डाउन हो भी रही है। एंड वी जस्ट हैव द लास्ट 5 minutes, एंड इफ यू लाइक द सेशन, आप लोग मुझे भी इंस्टाग्राम पे एक बारी मैसेज कर दीजिए टू प्लान मोर सच सेशंस। वी कैन हैव मोर लाइव सेशंस, एंड देन आई विल बी बेटर एबल टू एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज 30 minutes में हम कई बार इतने सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाते हैं। बट आई होप दैट वट एवर टाइम आई हैड, आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन बी ऑफ सम हेल्प टू यू एस्पिरेंट्स। एंड लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। सिलेबस को कैसे समझा जाए? तो सिलेबस मेंस का तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है आई थिंक। तो उसको आप समझने के लिए उस सिलेबस को आप पढ़िए और उस सिलेबस का मतलब जानिए पहले। जैसे कि एथिक्स में कीवर्ड्स हैं, उसका मतलब आप एक हिंदी में या फिर एक नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, जो कि एक लेमैन पर्सपेक्टिव से कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, राइट? तो अगर एक बारी आपको सिलेबस समझ आ जाएगा और उसको आप बार बार पढ़िए। सिलेबस को आप एक बारी रट्टा मत मारिए, उसको बार बार पढ़िए। फिर उसको अपने न्यूज़पेपर्स में जब आप पढ़ रहे हैं लागू कीजिए कि इस सिलेबस में, जैसे NGO सिलेबस है या फिर स्कीम्स हैं सिलेबस में GS2 के, तो कोई नई स्कीम आती है तो आप सोचिए कि इस पे मेंस का अगर आंसर आए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसलिए सिलेबस को दिमाग में रखना ज़रूरी है। एंड तो अब लास्ट के 2-3 मिनट रह गए हैं, तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया, एंड विल डेफिनेटली प्लान मोर सेशंस। और सोशियोलॉजी के लिए भी आई विल ट्राई कि हम एक सेपरेट सेशन रखें जिनका भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, बिकॉज इतने टाइम में वी कैन नॉट डिस्कस सोशियोलॉजी इन डिटेल। एंड इट वॉज अ प्लेजर इंटरैक्टिंग विद ऑल ऑफ यू, एंड आई होप यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। All the very very best, and if you need such sessions just message me. I'm so glad to be talking to me. आपका इंस्टा अकाउंट, my इंस्टा अकाउंट इज़ singla_gamini, तो आप उधर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जस्ट डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड एट ऑल, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। इस जर्नी में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। दिस जर्नी इज़ वेरी रिवॉर्डिंग, very tiring but yet very rewarding, and it is all worth it. Now that I have cleared the exam, I know that whatever hurdles that I had to face, उसके बाद मैं निखर कर ही आई हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे भी आइडियल सर्कमस्टांसेस मिले। तो आप ये मत सोचिए अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपको लगता है कि सही नहीं है या आइडियल नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि हम शायद हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जो आइडियल नहीं थे और जो शायद मैंने कभी सोचे भी ना हो कि, लेकिन उसके बाद भी आई वॉज एबल टू कम आउट ऑफ दो सर्कमस्टांसेस। तो आप भी आ सकते हैं, बट अपनी डिटर्मिनेशन को अपने साथ रखिए, अपनी प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को बनाइए, अपने ड्रीम्स को बनाइए, एंड अनलेस यू रिस्पेक्ट योर ड्रीम्स आई थिंक नोबडी एल्स विल। सो मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड hope we connect very soon again, and thank you so much. And you can just tell me how did you like the session, so that we can plan more sessions and I can answer the questions. Somebody, thank you Rocky, thank you Akimes, Aryavada, thank you.
I am so glad to know that you liked the, okay, Royal Roche, that's say the Instagram ID. I think they've tagged me in their post, so you can see the Instagram ID. It's Singla_Gamini. Um Jayesh, thank you. Sud, official, Black Cat, Shivani, Mansa Khane Singh, Shivani Singh, Plan More, Royal Roche, Tara, thank you so much for your good wishes. It is so heartwarming to be interacting with all. Bhale Rao saying, very thank you so much. Subodh, you're welcome and hope you come out with flying colors too. Rohit, you're welcome. Gaurav, Chaturvedi, and others are just joining in. So I think this session will be available afterwards also. You can anytime